Yeah. Awesome. So I think we all know the agenda of this session is. The agenda is very clear that we want that जो हमारी parent community है, Genesis की parent community है, they should be well versed with what is latest happening. We make an informed, so that we can together make an informed decision about our kids. We should not be trusting, we should not be getting lost in the myths जो चलती आ रही है. मैं बहुत सारी myths भी clear करूंगा during the course of the session. Because अगर हम informed decision लेंगे तो probability, success is never guaranteed, but the probability of hitting the success for our child increases. And I think I chose Sunday because it's the time where most of us can devote time. So there are multiple things जो हम लोगों ने आंसर करनी है आज. I'll straight away start with the most pressing issue. सबसे पहले मैं सबसे important, जनरली जितनी मैंने ऐसे वर्कशॉप्स की हैं पेरेंट की, मैंने ये टॉपिक हमेशा लास्ट में उठाया है, बट फिर उसको टाइम ढंग से नहीं दे पाते थे. तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, कंसर्न है, इज इज दैट अब 10th के बाद एक चीज डेफिनेट है कि most of the kids tend to change their schools. Most of them have to change their schools because school 10th तक है. Most of them want to change their school from this. So इस सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को टैग कर रहा हूँ. How do we choose the right school, or what is the right school for my child after class 10th? So I would expect all of you to settle down फटाफट से, and I'll definitely take your doubts also. You can personally message me on the chat, or you can message in the chat box also. अब स्कूल, सबसे पहले एक चीज हमें अपने दिमाग से निकालनी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई एक सही स्कूल नहीं है और कोई एक स्कूल गलत नहीं है. ये सारी गेम इस बात पे डिपेंड करती है कि what is the aspiration of my child in 2026. So let's assume, so मैंने जब स्टूडेंट सेशंस भी किए तो मैंने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन 2026 and mission 2024. Mission 2024 because we have, our students have to prepare for board examinations, and 2026 they'll be preparing for their 12th class entrance exams and 12th class board exam. So choice of school, the choice of school depends upon mission 2026. So we should always do a reverse planning. Now when I say we have to do a reverse planning, iska ye matlab hai, am I audible? One of the parents is saying I'm not audible, but am I audible? Can you make a thumbs up? सर एक बार आप अपनी सेटिंग को चेंज करके देखिए प्लीज, बिकॉज आई थिंक आई एम ऑडिबल. मैंने, हाँ, माय माइक इज आल्सो ऑन द मैक्सिमम वॉल्यूम. सो द चॉइस ऑफ, जब हम स्कूल की बात करते हैं, अगर मेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा, एक मिनट, कपल ऑफ पेरेंट्स आर सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल. स्पीकर, कौन कौन मुझे, अब जूम में एक ऑप्शन होती है तो मेक अ थम्स अप, कौन कौन मुझे बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं? आप चैट बॉक्स पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, द पीपल हु कैन हियर मी क्लियरली. ऑसम. ऑसम, आई थिंक अब मोस्ट ऑफ यू कैन हियर मी. अभी भी कोई मुझे, जो अभी भी, एनी पेरेंट हु कैन नॉट हियर मी, एनी पेरेंट हु कैन नॉट हियर मी? मोर और लेस आई थिंक वी हैव सॉर्टेड द इशू. सो स्कूल कौन सा चूज करना है, सबसे पहले एक चीज दिमाग से निकालनी है कि देयर इज कोई सही और गलत स्कूल नहीं है. मुझे ये देखना है कि मेरे एस्पिरेशन क्या है. मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. तो 2026 में, अब हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचना है. हमें थोड़ा सा इस सेशन के दौरान हमें टेंथ के स्कोप से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे. सो मुझे ये सोचना है कि अगर मेरा टारगेट क्या है,
एंड आई कम टू दैट ऑल्सो, क्या क्या हो सकता है टारगेट, बट मेरा टारगेट क्या है नाउ. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सबसे सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट. शुड आई चूज अ डमी स्कूल or basically a non-attending school, or should I choose a regular school? You know, in a regular school, should I go for a private school or should I go for a government school? In private school, should I go for a school which is nearby, or should I definitely send my child to Chandigarh जैसा सब बोलते हैं? तो ये 3-4 चीजें मैं अगले 10 मिनट में आंसर करने जा रहा हूँ, ठीक है? एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा अगले सेशन में अप्रैल ऑनवर्ड्स स्ट्रीम कौन सी ऑप्ट करेगा. नाउ नाउ लेट्स अटैक देम वन बाय वन, बिकॉज स्ट्रीम के साथ अटैच्ड है, सॉरी, स्टेट कौन से स्कूल में जाएगा उसके साथ अटैच्ड है स्टेट कोटा और यूटी कोटा सिस्टम, और इसको समझना बहुत जरूरी है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट स्पेंड टाइम ऑन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. अगर मेरा बच्चा कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में से कोई स्ट्रीम लेने का प्लान कर रहा है और अभी वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, इट कुड बी इन पंजाब, इट कुड बी इन हरियाणा, हरियाणा मीन्स पंचकुला, पंजाब कुड बी इन एनीवेयर नियर जरकपुर, इन जरकपुर, देन इट इज मोर एडवाइजेबल कि वो बच्चा चंडीगढ़ में +1 +2 करे. एंड द फैक्टर इज वेरी सिंपल, वी हैव अ यूटी कोटा इन चंडीगढ़ जो ये कहता है कि अगर 100 सीट्स हैं ग्रेजुएशन में, उसकी 85 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स जिनकी 11th-12th is from Chandigarh. This is for commerce, this is for humanities, which would mean अगर किसी के पेरेंट आप में से किसी का टारगेट है कि उसने बीकॉम करनी है, बीएससी करनी है, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल लेके बीएससी करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस नाउ दिस 85% इज कांस्टेंट फॉर इवन बीएससी कोर्सेज आल्सो, this is for BA courses also, this is for your BCom also. Basically graduation courses में 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं उस बच्चे के लिए जिसकी 11th-12th चंडीगढ़ से है. सो इट मेक्स मोर सेंस to do it from the Chandigarh. This is number 1. Clear? ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया. now let's come to non medical, then last में I'll come to medical. नॉन मेडिकल में इफ यू टॉक अबाउट, अगर मुझे नॉन मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग करनी है, मीन्स आई हैव टू अपेयर फॉर अ JEE एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो रूल कहता है कि जो हमारा चंडीगढ़ में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है PEC, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें 50% सीट्स उस बच्चे के लिए रिजर्व्ड हैं जिसकी 11th-12th चंडीगढ़ से है. 50%, नॉट 85%, 50%. बट उसके अंडर ही वी हैव अनदर कॉलेज इन सेक्टर 26 चंडीगढ़, वी कॉल इट एज CCET. इन CCET में देर आर 85% इंजीनियरिंग कॉलेज है 26 में, जिसको पहले डिप्लोमा कॉलेज बोलते थे, उसको अब इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्टेड है वो. उसके अंदर देर आर 85% सीट्स रिजर्व्ड. 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर समवन हु इज, जिसकी स्कूलिंग 11th-12th हुई है चंडीगढ़ से. अगर बच्चे ने इंजीनियरिंग नहीं भी करनी, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया, इंजीनियरिंग नहीं करनी, ही वांट्स टू टेक नॉन मेडिकल, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, जिसको डाउट्स हैं वो आप पर्सनली भेजते जाइए, आंसर देम टुगेदर इन द एंड. इंजीनियरिंग नहीं करनी बट नॉन मेडिकल लेना है, बिकॉज उसका थोड़ा सा स्कोप बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है बच्चा. उस केस में जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं चंडीगढ़ में, व्हेन आई से ग्रेजुएशन कोर्सेज, इसका मतलब आई थिंक सिंपल है, BCom, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, हमारा BSc, जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स इनकी 11th-12th चंडीगढ़ से है. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ऑसम. इसके बाद अगर मेरा बच्चा मेडिकल लेता है, नाउ दिस इज सबसे टफ ऑल्सो एंड दिस इज डिफरेंट. अच्छा, मैं एक इंजीनियरिंग के लिए एक और चीज आपको क्लियर करता हूँ.
अब अगर आपका प्रेजेंट बच्चा, अगर हमारा प्रेजेंट बच्चा मान लो स्कूल पंचकूला के स्कूल में पढ़ रहा है, और हमें ऑप्शन मिलती है, ध्यान सुनना ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे बहुत पेरेंट्स एंड अप मेकिंग फ्यू मिस्टेक्स, और हमें ऑप्शन मिलती है कि हम बच्चे को घर के आसपास ही कोई स्कूल चूज कर लें, बिकॉज मैं डमी और उसका बाद में समझाता हूँ। तो उसकी पेरेंट को लगता है कि द ट्रैवलिंग टाइम इज लेस, कहाँ स्पेशली चंडीगढ़ जाएगा, सुबह उठ के जाएगा, 1 घंटा बस में आएगा, 1 घंटा बस में, बिकॉज आदत नहीं होती हमें, हमारे बच्चे शुरू से पंचकुला में पढ़ रहा है, तो सडनली हम सोचते चंडीगढ़ जाएगा, जस्ट लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टाइम इन्वॉल्व। बट पॉइंट ये है कि हमने प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे की द सक्सेस प्रोबेबिलिटी, कामयाबी की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग के टाइम पे अगर हमारे पास यूटी कोटा नहीं है, तो हम जो मर्जी कर लें, वो हमें सीट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फॉर चंडीगढ़ मेडिकल के लिए। नो दिस इज सबसे टफ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। बट अगर बच्चा, तो मेडिकल के लिए मैं समझाता हूँ, मेडिकल का रूल बिल्कुल डिफरेंट है। मेडिकल का रूल ये कहता है, नीट के लिए रूल है, आई रिपीट, ओनली फॉर नीट एग्जामिनेशन, नॉट फॉर बीएससी कोर्सेज। अगर बच्चा मेडिकल लेता है विद द एम ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, तो रूल कहता है, अब यहाँ पे स्टेट वाइज रूल बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको ये जिसके भी बच्चे ने मेडिकल लेना है, तो आप ये बहुत ध्यान सुनना। अगर कंफ्यूजन है कि मेडिकल ले भी सकता है, तो भी बहुत ध्यान सुनना। तो ये कहता है रूल कि अगर बच्चे की 11th 12th जहां से होनी चाहिए, मैं 10th भी अगर वहीं से होगी, अगर हमें जीएमसीएच 32, जो 32 में मेडिकल कॉलेज है, अगर हमें 32 के मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा यूटी कोटा चाहिए, आई रिपीट, अगर हमें 32 के मेडिकल कॉलेज में यूटी कोटा चाहिए, तो वो तभी मिलेगा। मैं आपको जान के सबको हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि सबके दिमाग में जहन में घुस जाए। वो तभी मिलेगा अगर बच्चे की 10th 11th 12th चंडीगढ़ से है, विच मीन्स वॉट, अगर मेरा बच्चा आज की डेट में प्रेजेंटली पंचकुला में पढ़ रहा है, हरियाणा में, जो विच कम्स इन हरियाणा, या मेरा बच्चा पंजाब में पढ़ रहा है, तो नीट अगर टारगेट है, तो उसको 11th 12th के लिए चंडीगढ़ भेजने का कोई फायदा नहीं है। आई रिपीट, अगर टारगेट नीट एग्जाम है, मतलब डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना टारगेट है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने कैमराज ऑन कर लोगे, तो मुझे आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि मैं समझा पा रहा हूँ, एम आई बीइंग अ गुड टीचर, एम आई नॉट अ गुड टीचर। तो और नहीं तो मैं शिकायत लगाऊंगा आपके आपके बच्चों को। ठीक है, तो सो अगर मेरा टारगेट नीट है, एमबीबीएस करना है, और मेरी 11th 12th, अगर अगर मेरी 11th 12th पंचकूला से है, तो मुझे चंडीगढ़ जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैंने देखा है, जिनका जिनका सपना डॉक्टर बनाना होता है चंडीगढ़ में एमबीबीएस के लिए, ये उनको बहुत दुख होता है इस बात के लिए। बट ये रूल तो रूल है, वी कांट चेंज द रूल, वी कांट, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चे, अब चंडीगढ़ का कोटा तो मिलना ही नहीं है, अगर बच्चे की 11th अगर बच्चे की 9th 10th पंचकूला से या जीरकपुर से, लेकिन अगर वो हरियाणा में रहता है, अब दिस इज अ डोमिसाइल गेम, ट्रिकी गेम टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, डोमिसाइल और रेजिडेंस में फर्क है। डोमिसाइल का मतलब है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट से मिल जाता है ऑफिस से। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस का मतलब है कि कोई बंदा शायद रेंट पे भी रह सकता है, बट यू शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए मिनिमम कुछ ईयर्स होते हैं जिसका हरियाणा में रहने के लिए। तो अगर हमारा बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ गेम चेंजर, जो मैं अब चीज, एंड यू वुड हैव समवन हु प्रोबब्ली इज टेकिंग मेडिकल आपके नोन में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप गाइड कर सकते हो। अगर वो मेडिकल ले रहा है, स्कूल उसका 11th 12th में, 9th 10th में पंचकुला था, ये हरियाणा, बट डोमिसाइल भी हरियाणा का है, तो उस बच्चे को 11th 12th के लिए चले जाना चाहिए पंजाब में स्कूलिंग के लिए, क्योंकि पंजाब में रूल है, 3 साल 2 साल पहले उन्होंने फिर से वो रूल कर दिया है, दैट अगर आप 11th 12th, पंजाब के लिए रूल है, नीट के लिए, अगेन नीट नीट नीट, मैं बारी बारी बोल, दिस इज, वी आर कवरिंग नीट राइट नाउ। अगर हम 11th 12th पंजाब के स्कूल से कराते हैं,
आप रहते हरियाणा में हो और आप 11 12 पंजाब के स्कूल से कराते हो, तो आपके बच्चे को नीट में एमबीबीएस में हमें कोटा मिल जाएगा पंजाब की सीट्स पे। सो विच वुड मीन डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड द परसेंटाइल जो आएगा नीट में, जो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन हमें दूर की बात के लिए ही जो भी पेरेंट्स आज टर्न अप किए मीन्स दे आर प्रोग्रेसिव, उनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव है, वो जानना चाहते हैं होता क्या है। तो तभी द संडे को आप लोगों ने टाइम निकाला है, तो वो दूर की बात के लिए हमें डिसीजन अभी सही लेने पड़ेंगे। तो अगर हम रहते हरियाणा में हैं और हम पंजाब से 11 12 कर लेते हैं, तो हमें पंजाब का एक डोमिसाइल की स्कूलिंग के बेसिस पे एमबीबीएस की सीट्स पे कोटा मिल जाएगा। अगर आई रिपीट, अगर लेना मेडिकल है, टारगेट नीड नहीं है, बिकॉज मेडिकल में और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं आज कवर करूंगा इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। तो आंख बंद करके, रिपीट कर रहा हूँ, आंख बंद करके फिर आपको जाना है चंडीगढ़, बिकॉज जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं चंडीगढ़ में, व्हेन आई से ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा कह रहा हूँ, एमबीबीएस के अलावा जो कोर्सेज होंगे, उन सब में 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटी सिटीजन्स। सिर्फ उसके लिए 11 12 चंडीगढ़ से करी होनी जरूरी है। कमिंग टू एक एक चीज मैं बीच में बतानी भूल गया, जो जेई वाले बच्चे जिनका टारगेट इंजीनियरिंग है, जो जेई जेडबलई का एग्जाम देंगे, अगर वो 11 12 चंडीगढ़ से करते हैं, जो करने का बेनिफिट है मैंने बताया, कई पेरेंट्स ने काफी लेट ज्वाइन किए, तो एक की पेक में 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं और सीसीटी में 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग का नाम है यूआईईटी, उसके अंदर कोई कोटा नहीं होता, कोई यूटी कोटा नहीं है। पीपल विल टेंड टू मिसगाइड यू, बट नो, यूआईटी इंजीनियरिंग विच कम्स अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस सेक्टर 25 में है, उसमें देर इज नो, मतलब उसको उसके लिए दिस ओपन, उसमें जो नॉर्मल SC ST वो वाले कोटास चलते हैं, बट यूटी कोटा उसमें एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप रहते हरियाणा में हो, दिस इज इंटरेस्टिंग, और आपकी 11 12 बच्चे की आपने इंजीनियरिंग के लिए करा दी चंडीगढ़ से, तो डोमिसाइल के बेसिस पे आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में कोटा मिल जाएगा। आई रिपीट, एक तो यार आपके कैमराज ऑन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे जैसे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। सो एनआईटी में हमें कोटा मिल जाएगा अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा का है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बनाना पड़ेगा। मैम आप डाउट प्लीज चैट पे भेज दीजिए, बिकॉज मैं अनम्यूट करूंगा तो ना सबका टाइम वो हो जाएगा। आप मुझे अपना डाउट प्लीज चैट पे भेज दीजिए, इफ यू हैव अ कंसर्न आई विल आंसर दैट। अभी तक मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ इफ देयर आर एनी डाउट्स। ओके ठीक है, पॉइंट नोट। I'm just going through a chat box in case there is a concern or doubt. Okay, come. Okay, give me a minute. Now, this is as far as the quota, the state and the UT quota. Ab I'm coming to the most dummy attending school और नॉन अटेंडिंग स्कूल। इंपॉर्टेंट, आप प्लीज ध्यान सुनेंगे, और आप बहुत, आई ट्रस्ट यू एज योर एज द विजडम, but I'll also give my personal inputs also as someone who's into this sector from last 14 years. अगर मेरे बच्चे का टारगेट, and I want and एक मिनट, लेट मी, देयर इज अ डाउट। सो सर उसके लिए कंसर्न क्या है, मतलब व्हाट डिपेंड सर, आप क्या करना चाहते हैं, आप मुझे भेज दीजिए कि बच्चा स्ट्रीम कौन सी लेना चाहता है, मैं उस टारगेट क्या है, देन आई कैन प्रॉब्ली गाइड यू बेटर। मैम मैं लास्ट में एक बार सब कुछ रिकैप दूंगा, क्विक रिकैप दूंगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डमी स्कूल, रेगुलर स्कूल। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो समझाता हूँ, एंड आई वुड लीव द डिसीजन टू यू। दो बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है। स्टूडेंट एक्स बोलेंगे इसको, इसको स्टूडेंट वाई बोलेंगे। जो मेरे जिसमें मैंने रिंग पहनी है वो स्टूडेंट एक्स है, मैं बाद में टेस्ट लूंगा, एंड में देयर विल बी 5 minute टेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स। दिस इज स्टूडेंट एक्स, दिस इज स्टूडेंट वाई, और मार्क्स बच्चों को भेज देंगे। नाउ जो स्टूडेंट एक्स है,
इसका टारगेट भी इंजीनियरिंग है, मतलब जेई है, नॉन मेडिकल लिया, सेम जेई और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप रूटीन समझना, स्टूडेंट एक्स गोज टू अ रेगुलर स्कूल बिकॉज पेरेंट्स आर लिटिल स्ट्रिक्ट। आप भी अपने पे मत लेना, ठीक है, पेरेंट्स आर लिटिल स्ट्रिक्ट। पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमने डमी नहीं डालना, आप स्कूल जाओगे रेगुलर, नहीं तो आप सारा दिन टाइम वेस्ट करोगे। वो स्कूल गया सुबह, 2-2:30 बजे छुट्टी हुई, ही कम्स बैक अराउंड 3 o'clock। अगर नॉन मेडिकल का बच्चा है तो चंडीगढ़ की प्रेफरेंस बेनिफिट है, चंडीगढ़ जाएगा। 2:30-3 बजे तक घर, मोस्ट ऑफ यू लिव इन पंचकूला और जयरकपुर और बल्टाना पीर मशल्ला, सो चंडीगढ़ से आने में भी टाइम लगेगा, हिल रीच बाय 2:33 के आसपास आया। दिस इज स्टूडेंट एक्स, ठीक है। उसके बाद ही कम्स टू जेनेसिस एट अराउंड 4 o'clock इन 11th। अब +1 में क्लासेस की ड्यूरेशन 4 घंटे रोज होती है, शाम वाले बैच की बात कर रहा हूँ। 4 to 8 ही अटेंड जेनेसिस। 8 o'clock ही गेट्स फ्री, ही रीचेज होम एट 8:30। बहुत ध्यान सुनेंगे, 8:30 वो घर पहुंचा। सुबह अप्रोक्सीमेटली वो निकला था 7, 7:30 बजे, स्कूल बस में गया होगा चंडीगढ़। नौ, बीच में सिर्फ खाना खाने आया घर। नौ, इस बच्चे के पास जब ये घर पहुंचा, अब इसको जेनेसिस एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर जेई क्रैक करना है तो एटलीस्ट 4, 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मिनिमम चाहिए मुझे, मिनिमम, ये दिस इज मिनिमम। जेई चाहिए तो 4, 4.5 घंटे रेगुलर पढ़ेगा तो आराम से जेई निकल जाएगा। नाउ स्कूल का अपना काम है। अभी भी अगर आप देखो मैक्सिमम बच्चा, क्यों हम अटेंडेंस पेपरों के दिनों में बच्चा जेनेसिस में 2 घंटे की क्लास लगाने नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि स्कूल में यूनिट टेस्ट हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लासेस मिस होती हैं, सिलेबस बैकलॉग इकट्ठा होता है। तो इस बच्चे को 4, 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, अगले 2 सालों के लिए, अगले 2 साल की विंडो के लिए, सो दैट ही हैज अ राइट शॉट एट क्रैकिंग जेई। दिस इज स्टूडेंट एक्स। स्टूडेंट वाई, आई वांट यू टू लिसन टू दिस, ये बिल्कुल सेम, 10th तक दोनों सेम बैच में थे। स्टूडेंट वाई, he chose our morning batch, which starts at 9 o'clock, gets over at 2 p.m, 9 to 2 every day, ठीक है। जेनेसिस मॉर्निंग बैच, 5 days a week इंस्टेड ऑफ 6, बिकॉज एक दिन वो स्कूल जाता है। वो एक दिन स्कूल कौन सा जाता है जिसके साथ, मतलब वी कैन ऑल्सो गाइड इट, बट आप इंडिपेंडेंटली भी चूज करते हो। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, पर थोड़ी सी पेशेंस से बैठेंगे। तो ये बच्चा 2 बजे फ्री हुआ जेनेसिस से, जितना भी दूर रहता हो 2:30 बजे तक आराम से घर पहुंच जाएगा। अब 2:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक रात को बनते हैं 10 घंटे। इस 10 में से जेनेसिस का होमवर्क मिला मिलू के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज एज अ लीडर दैट मुझे 5 घंटे की सेल्फ स्टडी देगा बच्चा। उसने 5 घंटे की सेल्फ स्टडी दी, फिर भी उसके पास अपने लिए 5 घंटे बचे जिसमें वो को करिकुलर एक्टिविटीज कर सकता है। ही कैन गो टू अ जिम, ही कैन गेट इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल एक्टिविटी। he if he is finding non-medical or medical difficult, he can increase this 5 to 6 hours and still get 4 hours for himself. He's sleeping at 12:30 every day. He is sleeping for 6, 7 hours in the night, and he still gets an approximately hour in the morning to do another round of self study if he wishes to. If his target is maybe IIT and AIMS. This is student Y. This is student X. अब एज अ पेरेंट आप ये सोचो कि अगर 15 दिन की बात हो सिर्फ, तो शायद स्टूडेंट एक्स और वाई में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बिकॉज एक्स भी रात भर दिन रात मेहनत करके शायद खींच देगा। बट बात यहाँ 15 दिन की नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बोल्ड लैंग्वेज यूज करूंगा in terms of some parents might get offended, but again I've always been very honest with all of you. मेरे लिए I am not here to make you happy, I'm here to show you the right kind of stuff that has happened periodically in so many years what I have seen. So अब आप खुद देखिए कि can I, if my target is, that's what I said, if my target is my kid to go into a top college, what is the secret of getting into a top college? Is it Genesis? No, it is self study, a major time to get self study. अगर मैं अपने बच्चे को वो रूटीन नहीं दे रहा हूं कि वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाए, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अ पेरेंट, मैं बारी बारी बोलूँ दिस इज ओनली पेरेंट सेशन, अगर बच्चा आसपास है उसको आप दौड़ा दो। अगर मैं एज अ पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 8:30 बजे 8 बजे पहुंच के 12-1 बजे के बीच की विंडो में मेरा बच्चा खाना भी खाएगा, मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करेगा,
स्कूल का काम भी करेगा, जेनेसिस का काम भी करेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर नेक्स्ट 2 years. If we have, I'll be very honest, it might sound a little rude, but again, I can't lie to you. If we have more than 1,000 selections in the last 7 to 8 years, 90% of those selections have come from the kids who were in our morning schedules with the same faculty in the morning and evening. The more selections came from the morning schedule, and the credit does not go to just the credit does not just go to the genesis. It goes to the hard work and routine and regularity of students consistently for next 2 years. So it all depends upon the target which I have for my kid or my kid is having for me. मुझे एज अ पेरेंट सपोर्ट ये देना है कि द बेस्ट केस सिनेरियो में ही गेट्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द सक्सेस. वो तभी हो पाएगा अगर टाइम है पढ़ने का, और पढ़ने का टाइम सिंपल है तभी निकलेगा. इफ आई चूज वन, अगर मैं 4 घंटे का 5-6 घंटे का स्कूल, और मतलब चांसेस बहुत कम हो जाएंगे टू क्रैक. But अगर मैं, if I'm more towards, this is for competitive examinations like JEE, NEET, NDA, JEE Main 2 for which is for architecture. मैं धीरे धीरे आपको और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ बता रहा हूँ. Which exam is for what? Then I'll be little, मुझे थोड़ा डर लगेगा कि अगर मैं रेगुलर ये स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ जो मेरा बच्चा 10th में फॉलो कर रहा है, स्कूल जेनेसिस, और जो कितना कितना जेनेसिस, 2 घंटे का जेनेसिस, मे भी 2.5 घंटे का जेनेसिस. इससे डबल, मैं आपसे इससे डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज सिलेबस इज वास्ट. then it becomes very difficult with that kind of a schedule to do lot of self study नहीं होगी तो बच्चा 5 4 6 7 महीने बाद एक ही चीज बोलेगा कि नॉन मेडिकल या मेडिकल डिफिकल्ट है. ये दोनों स्ट्रीम्स मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है. वास्ट है. The syllabus is huge. So when the syllabus is huge, revision becomes the most important. The revision becomes the most important strength. Revision करने के लिए, repetition के लिए time चाहिए. If my child is planning to take commerce or humanities, I repeat, commerce or humanities मेरा target है, या medical non-medical भी target है, but I am not very keen for JEE or NEET. I just want to give him a right कि ठीक है मेरा कोई और plan है. Then you commerce humanities, schooling is very important. I feel schooling is very 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 important because शाम को इतना प्रेशर नहीं है कोचिंग का या एकेडमिक गाइडेंस का. तो उस केस में अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज है तो अगर 2-2.5 घंटे की भी ट्यूशन है, एक ऑल्टरनेट पे एक है, एक ऑल्टरनेट दूसरी है, तो उस केस में बच्चे को रेगुलर स्कूल बिल्कुल जरूर जाना चाहिए. उस केस में रेगुलर स्कूल बिल्कुल जरूर जाना चाहिए. बिकॉज उस केस में क्या है कि बच्चा अगर स्कूल भी नहीं जा रहा तो ही इज लॉस्ट टच विद दिस. फिर वो बच्चा फिर सारा दिन आवारागर्दी वाला. तो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज अगर मेरे बच्चे का टारगेट है, सेंड हिम टू अ रेगुलर स्कूल. यहाँ तक आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? I'm reading the chat box. In case यहाँ तक कोई डाउट है, you can ask me. Okay, awesome. Now some very important, साथ साथ some very important जो हम बच्चे करियर मिस्टेक्स कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लेस गाइडेंस, आई विल से. ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूचुअली. मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ. सो कुछ 3-4 साल पहले वी हैड अ स्टूडेंट, आई नॉट नेम इट. तो वो 10th में हमारे पास था. तो उसने 10th में ही वाज अ डिसेंट स्टूडेंट जिसका टारगेट था, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ रियल स्टोरी. उसको एनडीए क्लियर करना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम. मतलब एनडीए के बाद उसने आर्मी ज्वाइन करना था. नाउ उसको मैंने जितना आई हैव नोन है, मैंने उसको एडवाइस किया गया तू ये रूट बहुत सही है, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस, यू गो थ्रू दिस रूट बाय टेकिंग नॉन मेडिकल. तो उसने शायद पेरेंट्स से डिस्कस किया होगा, पेरेंट्स वर मोर कीन कि नहीं नॉन मेडिकल छोड़ तू कॉमर्स कर ले. ही चोज कॉमर्स. नाउ उस 2 साल, एंड obviously since Genesis does not teach commerce, so we lost touch. तो उसके बाद ही रीअप्रोच्ड मी 1.5 साल के बाद. ही सेड सर कि
मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज बिकॉज ही वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स. अब एनडीए में, अब दिस दीज काइंड ऑफ मिथ्स लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव, लॉट ऑफ किड्स हैव. एनडीए में एक बहुत क्लियर रूल है कि आप एनडीए का पेपर किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हो. बिल्कुल ठीक बात है, मैथ्स होना चाहिए आपके पास 11th 12th में. आप कॉमर्स विद मैथ्स से भी दे सकते हो. आप ह्यूमैनिटीज लेके विद मैथ्स भी आप एनडीए का पेपर दे सकते हो. नॉन मेडिकल सब ऑब्वियसली दे सकते हो. बट देर इज अ हिडन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है उसमें, कि अगर मेरे बच्चे का टारगेट इज ओनली इंडियन आर्मी. अब एनडीए इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, सो दिस पॉइंट इज वैलिड फॉर ऑल ऑफ यू. अगर टारगेट इज ओनली इंडियन आर्मी, देन ही कैन, ये वाला पॉइंट वैलिड है कि वो किसी भी स्ट्रीम से दे सकता है. बट अगर वो चाहता है कि उसके लिए तीनों तीनों डिफेंस सर्विसेज ओपन हो जाए, विच मीन्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उसके लिए फिजिक्स इज अ मेन सब्जेक्ट. मतलब मेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स होना चाहिए 11th 12th में, विच मीन्स अ चाइल्ड अपेयरिंग targeting NDA with a physics background will have a higher probability because of a simple reason, because उसके पास तीनों तीनों डिफेंस सर्विस में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी है. So which means what, it's very important for us as a parent. देखो हमारे हाथ में जो है, we will keep on guiding them. Already I've taken two sessions with the kids where I've discussed a lot of things, and I'll take one more session with them in the next 10 days where I'll explain them other things also. But as a parent, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ी सी और रिसर्च करके करें. अब वो बच्चा जो बेचारा डिजर्व करता था, बट वो सिर्फ इस चीज से रह गया बिकॉज ही ब्लाइंडली चोज्ड कॉमर्स, wanted to crack NDA, wanted to join Air Force, but eligibility नहीं बनी. Another जो myths मैं बहुत common सुनता हूँ बच्चों से, मैंने बच्चों के भी क्लियर किए, is that lot of parents, lot of kids से, सर मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा. अब ह्यूमैनिटीज इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम. ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट उसका रीजन वो कहता है सर मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा. अब दिस नेक्स्ट 5 minutes आर वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग 5 minutes. मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा सर बिकॉज मुझे बाद में यूपीएससी क्रैक करना है. और ये बहुत सारे, और इंडिया में आई थिंक कहीं ना कहीं एक बार हर घर में एक सपना जरूर देखा जाता है कि मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस बने. तो वो बच्चा बच्चा 10th का बच्चा है, अब ध्यान सुनना, 10th का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज इसलिए लेना चाहता है क्योंकि उसको शायद किसने बताया है, गाइड किया है कि यूपीएससी क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी ह्यूमैनिटी से बढ़ जाती है. अब आई वॉन्ट यू टू दिस इज द स्टूपिडेस्ट डम्बेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड. एंड दिस ये, और ये बहुत लोगों के जहन में बात है. आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप कुछ मत करो, आप गूगल को या चैट जीपीटी वॉट एवर यू यूज इट मोर को इंस्ट्रक्शन देना कि मुझे लास्ट 10 years के यूपीएससी के टॉपर्स के जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, मतलब हर साल के टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 टॉप 20 के, उनका अकेडमिक बैकग्राउंड निकाल के दो. आपको शॉकिंग रेवलेशंस, सरप्राइजिंग आंसर्स मिलेंगे. दैट मोस्ट ऑफ द यूपीएससी टॉपर्स इन लास्ट डिकेड, ये मैं आपको सिर्फ, आप 30 सालों का निकालोगे, 30 सालों को मिल जाएगा, आर फ्रॉम आइदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड. अब एक बच्चा बेचारा जिसने शायद 2030-31 में जाके एंड यूपीएससी का पेपर देना है, जिसके लिए उसने 2023 में डिसीजन लिया, 24 में, कि मैं आर्ट्स करूंगा. आर्ट्स बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बट उसका रीजन उसने क्या दिया आर्ट्स लेने का, कि यार मैं यूपीएससी क्रैक करके इंडियन आर्मी, सॉरी, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर. तो आप ये देखो कि अगर यूपीएससी का और ह्यूमैनिटीज का कोई लिंक होता, और मैं जो कई पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको आंसर करता हूँ अभी, कोई लिंक होता, तो ये 10 सालों से 15 सालों से वाई आर वी सीइंग साइंस बैकग्राउंड किड्स मेकिंग इम्पैक्ट इन यूपीएससी एग्जाम. नाउ द मिथ, ये मिथ कहाँ से उड़ा, देन आई डिड अ लॉट, मैंने इस पे 2 साल से बहुत रिसर्च किया कि ये क्यों, पेरेंट्स का माइंडसेट कहाँ से आया. ये यहाँ से आया
कि जब यूपीएससी का पेपर देना होता है तो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो वहां पे लोग ह्यूमैनिटीज का, आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करके वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। अब ये आर्ट्स का सब्जेक्ट कौन चूज करता है? ये वो चूज चाहिए, ये एक साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा भी, जिसने साइंस पढ़ी है, चाहे इंजीनियरिंग की है या जिसने बीएससी की है, वो बच्चा भी जब यूपीएससी के टाइम पे एक आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज कर लेता है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट चूजिंग अ सब्जेक्ट आर्ट्स एट द टाइम ऑफ गिविंग यूपीएससी, 1-1.5 साल जब भी वो तैयारी कर रहा है, and choosing the subject arts for the entire next 7 years. Or why these guys are able to do better with the science background? Because they had, अब हुआ, आप ये समझो आयरनी देखो, एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ने यूपीएससी में आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करके उस बच्चे से उन्हीं सब्जेक्ट्स में बेटर कर लिया जिन्होंने पूरी लाइफ 7 साल आर्ट्स पढ़ा है। एंड आई डोंट से दिस, आप इसके बारे में जितनी मर्जी रिसर्च कर लीजिए, आपको जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैंने बताया, वही निकलेगा तथ्य। ट्रूथ इज दैट ओनली। सो वी शुड बी, हमें बहुत, मतलब वी शुड बी लिटिल केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर चूजिंग। एंड इस इन दोनों के, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा टारगेट और जो हम चॉइस कर रहे हैं उनके बीच में एक एक कॉमन पॉइंट आता है, रिसर्च, होमवर्क, जिसको मैं बच्चों को बोलता हूँ होमवर्क। होमवर्क का मतलब है, as a parent, as a mentor, it's my responsibility to guide them right, and as a parent also it is your responsibility कि थोड़ा सा रिसर्च करें हम इन चीजों में। और यही चीज होती है एमबीए के लिए भी, सेम, एब्सोल्युटली सेम ट्रैक। अगर आप चेक करेंगे कि बच्चा कहता है कि मैंने सर कॉमर्स लेना है 11th 12th में, बिकॉज एंड बिकॉज नॉट बिकॉज आई वांट टू बी सीए और फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एनालाइजर, आई वांट टू बी एन डू एन एमबीए। Now, same MBA में the exam is CAT, CAT, CAT entrance exam. Same trend देखा गया है कि last 10 years से most of the kids who have been toppers are from either science or are from science background, more or less engineering background. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा we at times we tend to be a bit misguided by people around us. I'm reading couple of doubts on this. Okay. So where to choose dummy school in Chandigarh, Delhi, or for getting into? I'll explain. I'll explain you the choice of dummy schools. Give me a minute. So मैं वो उसको लास्ट पार्ट में आंसर करूंगा इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो आई थिंक यहाँ तक हम सब क्लियर है, आप सब मेरे साथ हो यहाँ तक? इफ ऑल ऑफ यू आर विद मी टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वट एवर वी डिस्कस, अ थम्स अप विल बी अप्रिशिएबल। थम्स अप की ऑप्शन आती है हमारे पास चैट में। एक तो यार मैं बाई गॉड, मैंने अब स्क्रीनशॉट लेके ना बच्चों को आज भी दिखाना है कि ये देखो आपके बच्चे पेरेंट्स बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं करते। आज डेफिनेटली आप देखना, अब आपकी मैं आज जिम्स के बाद आप लोगों की क्लास लगवाता हूँ। स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आज ग्रुप्स पे। 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, नाउ वी विल हैव few more points. स्ट्रीम कौन सी बेटर है? आई एम कमिंग टू द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। लास्ट में आई टेक, मैंने चैट पे मैं डाउट्स पढ़ रहा हूँ, मैं आपके डाउट्स में 90% सारे आंसर हो जाएंगे बाय द टाइम आई एंड द सेशन। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है आप उस पे चैट पे भेज दीजिए। नाउ, स्ट्रीम कौन सी बेटर है? अगेन आई एम सो सॉरी, ये बहुत क्वेश्चन मुझसे इतने सालों से पूछा जा रहा है, ये एक बहुत ही डम क्वेश्चन है। स्ट्रीम अच्छी बुरी नहीं होती। वी हैव टू सी हमारे बच्चे के लिए, या बच्चे को ये सोचना है कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम राइट फिट है। चारों स्ट्रीम्स आर हैव देयर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। मैं जो नेक्स्ट सेशन बच्चों के साथ करूंगा, अब ध्यान सुनना, मैं उनको एक पूरा डिटेल्ड चार्ट दूंगा। उस डिटेल्ड चार्ट में, यस यस, एवरीबडी विल गेट द रिकॉर्डिंग। उस डिटेल्ड चार्ट में यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस इन ऑल द 4 स्ट्रीम्स इन आवर कंट्री। ठीक है, वो आपके बच्चों को नेक्स्ट सेशन में जो मैंने उनके साथ करना मिल जाएगा।
कमिंग टू विच स्ट्रीम इज गुड, नो देयर इज नो गुड स्ट्रीम, देयर इज नो बैड स्ट्रीम, पहली चीज तो ये दिमाग से निकालेंगे। ऑल स्ट्रीम्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, आर गुड एंड हैव गॉट गुड स्कोप। जितना जैसे जैसे अब हाउ डू आई डू रिसर्च, मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसर्च मैंने हाउ डू आई अप्रोच थिंग्स। सो आई सी दिस, अब देखो कैसे और मैं जैसे जेनेसिस के स्टूडेंट्स को मैं कैसे गाइड करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि 2024 में ये बच्चे 10th करेंगे, 2026 में 12th करेंगे, 2030 में मोर और लेस, अगर एमबीबीएस के अलावा 2030 में ये लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग चाहे नॉन इंजीनियरिंग। सो आई गो ऑलवेज रिवर्स कि टॉप करियर्स 2030 में कौन से होंगे, कौन से सेक्टर्स टॉप 2000, कौन से टॉप 2030 में सेक्टर्स इन डिमांड होंगे। सो बेस्ड अपॉन दैट बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आई थिंक यू वुड ऑल्सो, आपने सुना है, आपका हम लोग दिन रात सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैम डेफिनेटली यू कैन मीट मी, मैं आपको टाइम दिलवा दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एक सिंपल सा, और उसमें जो सबसे टॉप पे एक करियर जाने वाला है, दैट इज डाटा साइंटिस्ट, डाटा साइंसेस, विच मीन्स, जिसका सिंपल सा मतलब है कि, जिसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आप हम सबका नेटफ्लिक्स के, या हम अमेजोन प्राइम देखते हैं या हॉटस्टार देखते हैं, हम जो भी उसका हमें जो चीज़ दिखती है नेटफ्लिक्स पे बारी बारी, जो मुझे दिख रही है और जो आपको दिख रही है वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। जो किसी थर्ड पेरेंट को दिख रही है वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, because it's based upon the kind of things, I think we all know it's based upon the kind of things I like। जैसा कंटेंट मुझे देखना पड़ता है, अच्छा लगता है, तो मुझे वही चीजें शो होती हैं। जो आपको देखना कंटेंट अच्छा लगता है वो आपको शो, दिस इज बेस्ड अपॉन अ डाटा साइंस इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, ये रोल है उनका। मैंने आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाया है। अगर मैं अमेजोन पे, या मैं किसी और वेबसाइट पे, फेसबुक पे, या मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी चीज़ को इंटरेस्ट शो करता हूँ या मुझे देखने में अच्छी लगती है, कोई कोई घर के लिए चीज़, तो अमेजोन मुझे, जब मैं अमेजोन पे जाता हूँ या फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, तो मुझे उसी की ऐड बारी बारी पेलता रहता है, दिखाता रहता है, गूगल पे भी दिखाता रहता है, कब तक, जब तक मैं उसको ऑर्डर ना करूँ। अगेन द रोल ऑफ अ डाटा साइंटिस्ट। सो दिस इज, मतलब there are multiple upcoming professions, but this is going to be the big next big thing. अब this 90% डाटा साइंटिस्ट, 90% आई एम सेइंग, का रूट थ्रू साइंस निकलता है। आई रिपीट, 90% का रूल थ्रू साइंस निकलता है। डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, इनका रूट साइंस में छुपा हुआ है। बट देर आर ऑल्टरनेटिव वेज ऑल्सो टू बी अ डाटा साइंटिस्ट इफ द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल टेकिंग इन साइंसेस, कंफर्टेबल टेकिंग साइंसेस। सो डाटा साइंटिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग वाला वो हो गया, ये है विच कम्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच दीज आर गोइंग टू बी द मेजर मेजर थिंग्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोडिंग, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड कौन लिखेगा, कोड लिखा जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोड लिखा जाएगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा, एक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा। या फिर अगर आपको लगता है कि बच्चे ने आईटी में, मतलब इस कंप्यूटर लाइन में ही कोर्स करियर बिल्ड करना है, लेकिन इंजीनियरिंग शायद कई कई पेरेंट्स बिकॉज कन्विंस नहीं होते हैं या डरते हैं बिकॉज दिस, तो आप बीसीए एमसीए रूट से भी आप +1 +2 में अगर कॉमर्स या आर्ट्स लेता है बच्चा, या नॉन मेडिकल भी लेता है, और उसको जेई नहीं क्रैक होता या जेई क्रैक नहीं देना ही नहीं चाहता, तो बीसीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद उसका 5 साल, मतलब एक साल एक्स्ट्रा लगेगा, टोटल 5 ईयर में ही विल बी इक्वल टू एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट अगेन, अगर बच्चा ब्राइट है, पढ़ने में ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज, माय पर्सनल एडवाइस विल ऑलवेज बी कि डेफिनेटली जेई पे शॉट क्रैक जरूर देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ शॉट एट जेडबल एग्जाम। सो 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 और व्हाट आर द ऑप्शंस, आई थिंक, मतलब एनडीए का मैंने आपको स्टार्टिंग में क्रिएट कर ही दिया कि एनडीए अगर टारगेट इज टू हैव द हायर प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर के लिए अगेन फिजिक्स इज कंपल्सरी। अगर बच्चे का रूट है बी कॉम, बी फार्मेसी, अब मेडिकल और एक पे बी फार्मेसी अब मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों से कर सकते हो। देर इज, कई लोगों को कंफ्यूजन है दैट वी कैन ओनली डू इट फ्रॉम
medical? No. B pharmacy can be done from both medical as well as non-medical. एक एग्जाम जो रिसेंटली लास्ट 2-3 सालों में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो चारों स्ट्रीम्स के बच्चे देते हैं आज की डेट में, दैट इज CUET. जितनी भी हमारे कंट्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगेन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना, जिनका टारगेट वो नहीं है, तो एग्जाम का नाम है CUET, जो सारी स्ट्रीम्स के बच्चे देते हैं, जिसमें सिर्फ 12th का पेपर आता है, 12th का सिलेबस आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर. सो अब हम इस रीजन से, कई बच्चे इस रीजन से साइंस लेने से डरते थे कि हम एंट्रेंस नहीं देंगे. अब हमें किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा. अब जैसे बहुत रीसेंट एक नोटिफिकेशन आई है, मैंने बच्चों के साथ जो मेरा ग्रुप बना हुआ उस पर शेयर भी की थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि अगर एक बच्चा, दिस इज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आई है, परसों चौथी हुई है, कि अगर बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया है वो फिर भी डॉक्टर बन सकता है. विच मीन्स, बट उसमें एक कंडीशन आई कि बायो में पासिंग मार्क्स चाहिए 12th में. ये बहुत सरप्राइजिंग आया है, मतलब वेरी स्ट्रेंज नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट, बिकॉज इट इज नाउ एवरीवेयर इन प्रिंट मीडिया ऑल्सो, कि अगर बच्चा नॉन मेडिकल लेता है, मतलब इन्होंने नॉन मेडिकल में और सारी स्कोप डाल दिया, कि अगर बच्चा नॉन मेडिकल लेता है और बायो को एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता है, तो वो जेई तो देगा ही देगा, बिकॉज उसने जेई वो जेई भी दे सकता है, वो एनडीए भी देगा बिकॉज मैथ्स है, जेई दे दिया बिकॉज इंजीनियरिंग है, वो मेडिकल भी दे सकता है. उसको सिर्फ बायो में 12th में पास होना जरूरी है. पासिंग मार्क्स मीन लाइक एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है. आई शेयर दिस इन द ग्रुप्स, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इज दैट कि मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, इज जस्ट दैट कि हमें अब मैं आपको जैसे क्या फैक्टर हैं, गाइडेंस किस फैक्टर पे होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगा, कई पेरेंट्स को, इंटरेस्ट और मार्क्स में फर्क होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स शायद उतने नहीं आ रहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इट कुड बी प्रेशर ज्यादा ले रहा है, इट कुड बी गलतियां ज्यादा कर रहा है, इट कुड बी उसको टाइम कम दे रहा है, बट उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होता है. सो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे इंटरेस्ट को मेजर आप प्लीज मत करना. that will be not helpful. I'm just reading a few of the doubts. Yes, ma'am. We can surely you can surely come and take time, and you can come and meet me. मैं आपको बता दूंगा how can you come and meet me. Okay. Now, this is the basic concerns. I'll surely recheck, sir. Okay. Now what will be our plan? Our plan is as simple but efficient. In Genesis, we have multiple kind of batches: morning batch, evening batch. Morning batch timing 9 to 2 और 10 to 3, दो बैचेस होंगे हर ब्रांच में. ज़ीरकपुर में विल स्टार्ट विद द मॉर्निंग बैच दिस ईयर डेफिनेटली. सो 9 to 2 का बैच, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और 10 to 3. नाउ 2-3 डाउट्स जो पेरेंट्स ने पूछे थे वो इससे क्लियर हो जाएंगे. वी हैव टाई अप्स, अब आई कांट पब्लिकली नेम द स्कूल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, बट वी हैव टाई अप इन चंडीगढ़, in Haryana, which is Panchkula, and also in Punjab. So based upon बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा, we would advise you, guide you कि हम बच्चे को इस स्कूल में भेजेंगे for non attending. And अब आई थिंक यहाँ पे ना बहुत बार मुझसे पूछा गया, सर डू यू थिंक नॉन अटेंडिंग इज एथिकल और नॉन एथिकल. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनएथिक्स और एथिक्स की बात को क्लियर करता हूँ. For me as a person, I have a very simple dream. And the dream is that maximum students of Genesis should reach good colleges whenever they join us. इसी विजन से, इसी ड्रीम से मैं आई ट्राई टू पर्सनली मेंटर देम. अब उस ड्रीम को अचीव करने के लिए एट टाइम्स we have to do tie up with schools, which gives us the privilege of taking care of the practical marks of our students in 12th, which gives us the privilege of taking care of the attendance, so that a child can actually do self study, वो actually self study कर पाए. Because अगर मैं भी हूँ, मुझे भी
रेगुलर 4-5 घंटे की ट्यूशन के साथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 4-5 घंटे स्कूल ट्यूशन के साथ मुझे 4-5 घंटे उसके बाद पढ़ने हैं, तो शायद मेरा भी बैंड बच जाएगा। तो आई वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू माई चाइल्ड टू क्रैक अ गुड एंट्रेंस एग्जाम एंड गेट इन टू द बेस्ट कॉलेज, जो उसके लेवल से बेस्ट कॉलेज है। अब वो बेस्ट, इसके लिए हम दिस इज द आंसर ऑफ कि मॉरली इट माइट बी रॉन्ग कि हमें स्कूल भेजना चाहिए बच्चे को, बट मेरे लिए मॉरली बहुत मॉरल्स आर इम्पोर्टेंट, बट करियर ऑफ चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे बिल्ड करनी है हाई, वो फॉर दिस इज व्हाई वी हैव चोजन दिस प्रोग्राम्स। नाउ जो मॉर्निंग बैच होगा, जिस भी तीनों ब्रांचेस में से होगा, वो 9 to 2 चलेगा। जो जो आफ्टरनून बैच होगा वो अराउंड 4 to 8 या 3:30 to 7:30 चलता है। समर्स में 3:30 चलता है, विंटर्स में हम उसको 4 कर देते हैं बिकॉज बच्चे लेट आते हैं। ऑप्शन दोनों बैचेस की हैं। डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। हमारे एंड से कोई डिफरेंस नहीं होगा, इज जस्ट दैट कि बच्चे के टारगेट टू टारगेट और स्कूलिंग वाइज डिफरेंट होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट अवे जेनेसिस को 11th में ज्वाइन करते हैं, वो रेगुलर स्कूल में जाते हैं, वो उनको उनके साथ मेरा इंट्रैक्शन नहीं हुआ तो उन पेरेंट्स के साथ, तो दे मोस्ट ऑफ देम चूज द इवनिंग बैचेस। एंड जनरली जो जेनेसिस का कॉन्टिन्यूएशन वाला बच्चा होता है, क्योंकि वो मेरे साथ टच में होता है, दे दे आई कैन गाइड देम वेल, तो वो कंटिन्यू करता है मॉर्निंग बैचेस में। दिस दिस इज वन। नंबर टू, नाउ द प्लान इज वेरी सिंपल। वी एक बच्चा जो मॉर्निंग वाला हमारे पास बच्चा आएगा, 5 दिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। 5 दिन वो जेनेसिस आएगा 5 घंटे के लिए, और एक दिन वो स्कूल जाएगा। वो कौन सा स्कूल होगा? जो हमारा पार्टनर, आप ये जरूरी नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आपको वही स्कूल चूज करना है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। अगर आपको अपने एंड से कोई भी स्कूल चूज करना है, वी गिव फिल एब्सोल्युटली क्रेजी फ्रीडम, आप कुछ भी चूज करो। सिर्फ एक चीज, उसको कोई भी स्कूल में भेजो, बट वो फिर अगर आप मॉर्निंग बैच ले रहे हो तो उसमें अटेंडेंस का इशू नहीं होना चाहिए। हमें किसी स्कूल से यहाँ पे इस मैटर में आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश, वी हैव नो इश्यूज विद एनी स्कूल। इट्स जस्ट दैट हमें ये देखना है कि हमारा बच्चे की प्रोबेबिलिटी कहाँ बढ़ रही है। सिंपल, मैं बारी बारी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे बढ़ सकता है उसका। तो 5 डेज वो स्कूल जाए, 5 डेज वो जेनेसिस आएगा, एक दिन वो स्कूल जाएगा, स्कूल में वो प्रैक्टिकल्स और इंग्लिश वगैरह कर लेगा, एंड संडे विल बी एब्सोल्युटली ऑफ फॉर द चाइल्ड। आर वी द रीजन वी हैव बीन एबल टू हिट, यहाँ तो कोई डाउट किसी का? वो अभी आई गिव यू द नेम्स, बट आई कांट गिव द नेम्स लाइक दिस पब्लिकली, बट वी विल गेट टू नो द नेम्स। नेम हम आप तक तीनों स्कूल्स के नाम पहुंचा देंगे, डिफरेंट कोटा के हिसाब से। पंचकुला हरियाणा, विच कम्स इन हरियाणा, पंजाब में स्कूल, और चंडीगढ़ में स्कूल, विल गिव यू द नेम्स। Also, those will be private schools. Let me just clarify this: private schools. Reason, because government school do not do a tie-up, unfortunately, but they don't do tie-ups. अब government school का मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्लियर करके। बहुत सारे गवर्नमेंट लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ, एक बच्ची थी हमारे पास, पिंजौर से आती थी। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। वो बच्ची हमारे पास पिंजौर से आती थी मेडिकल में। तो उसने 11th में हमारे पास पूरा 11th किया। उसका स्कूल था आई थिंक 21 मॉडल और 19 मॉडल, इन दोनों में से कोई था। तो उसने 11th पूरी आराम से कर ली। स्कूल एक दिन जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल लिया होता, बट एक ही दिन जाती थी। 11th खत्म हो गई, 12th का बैच शुरू हुआ। 12th में अप्रैल में कोई इशू नहीं आया उसको, सेम मॉर्निंग बैच में आती थी पिंजौर से। अगेन सुबह 8 बजे, 8 सवा 8 बस पे आती थी। क्या हुआ कि स्कूल में सडनली उन्होंने स्ट्रिक्टनेस कर दी। अब जब वो स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने क्लियर बोल दिया कि या तो आप 4 दिन आओ, या आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बच्चे को स्कूल जाना पड़ा, बिकॉज स्कूल 12th में तो आप कहीं और जा नहीं सकते, साल वेस्ट हो जाएगा। तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब जब स्कूल जाना शुरू किया, उससे जेनेसिस की क्लासेस में होनी शुरू कर दी। तो हमने उसको एडवाइस किया कि तू बच्चे एक काम कर, तू शाम वाले बैच में आ जा। बट वो शाम वाले बैच में नहीं आ पाई, बिकॉज पिंजौर से आती थी, 8 बजे रात को छुट्टी होनी, लोकल बस पे ट्रैवल करना डिफिकल्ट था। सो शी एंडेड अप, शी हैड टू लीव जेनेसिस इन बिटवीन 12th, इन स्टार्टिंग ऑफ 12th। अब उसका फिर नीट का एग्जाम थोड़ा सा खराब भी हो गया। वो डिजर्विंग बच्ची थी। अब ये क्या है कि डायनेमिक्स ना चेंज हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे एज अ पेरेंट एक कंसर्न आता है, एंड वो बिल्कुल जेन्युइन है। कि सर, एक प्राइवेट स्कूल की फीस फालतू में बहुत ज्यादा होती है इन 11th 12th, आई एम सेइंग। हम एंड गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली मोर और लेस फ्री। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ
इसलिए द काइंड ऑफ वी ट्राई आवर बेस्ट टू चूज प्राइवेट स्कूल जो और हमारे पार्टनर स्कूल्स हैं दैट कैन ऑफर सम स्कॉलरशिप टू द पेरेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे एज अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल बर्डन ऑब्वियसली बन जाता है, और एक और चीज़ होती है जब बच्चे ने स्कूल जाना ही नहीं है तो मैं इतने पैसे दूं भी क्यों। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 2 साल के 1 लाख रुपया अगर बचाता हूँ स्कूल से, और उसके ल्यू में मेरे बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, और वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होते होते नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया, तो जो मैंने शायद कुछ फंड्स जरूर बचाए मैंने 2 साल, वो जब मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th एडमिशन लेना पड़ा, कोई गवर्नमेंट में सीट नहीं, ना रैंक नहीं आया, तो वो सब वापस निकल जाएगा। मतलब एज एन लीडर ऑफ द पैक, माय मतलब माय रोल इज ओनली दिस कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ व्हेन आई मीट द स्कूल फाउंडर्स और प्रिंसिपल्स टू help you guys get the maximum scholarships from the school. But again, you would understand they have their own challenges and whatever it is. So वो एक थोड़ा सा एक वो एक स्ट्रेस रहता है, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये एक जेन्युइन कंसर्न आता है पेरेंट का, इसलिए मैं आपको वो सारे वो कंसर्न्स खुद ही अपने एंड से आंसर कर रहा हूँ, विच आई हैव फेस्ड इट एंड विच माय पेरेंट कम्युनिटी हैव फेस्ड इट इन द इयर्स. So we would find, we are with you in this, we'll try to find the middle way out of it. Now another important question which comes is that कि सर ये क्वेश्चन मैं बहुत सालों से आंसर कर रहा हूँ, मैं पर आपके लिए नहीं कर रहा, आपके लिए नहीं किया तो आंसर करता हूँ कि सर हाउ वुड यू से दैट व्हाई शुड आई कंटिन्यू विद जेनेसिस इन +1 +2? वेरी सिंपल, और नॉट सम अदर इंस्टीट्यूशन, वेरी सिंपल. My role in Genesis is in 11 12th is that I focus a lot apart from teaching, whatever is जो 5 घंटे का schedule जो भी follow होगा. My role is to prepare students for the right mindset to crack competitive exams. अगर आप अभी भी देखेंगे कि मेरा रोल धीरे धीरे मैंने 10th के बैचेस में इंक्रीज करना शुरू कर दिया. टिल सितंबर माय रोल वाज मिनिस्क्यूल. फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 सेशंस. अब मैं ऑलरेडी आई एम इन द मिडल ऑफ मीटिंग ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन. अगर कई आप में से कईयों के बच्चों के साथ मेरी वन ऑन वन डिस्कशन भी हो चुका है, कईयों के साथ आने वाले 10-15 दिन में आई विल बी कंप्लीटिंग वन ऑन वन डिस्कशन विद ऑल ऑफ देम. That's one where I focus. The basically it's about the mindset to crack competitive exams or getting India's best college. Academically, physics, chemistry, maths or bio के अलावा the real factor is that are they being prepared from here? So we have done a partnership with Imbibe. Imbibe मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. Imbibe is a platform where we have tied up with them, and let me show you something if give me a minute. आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे कैन यू सी समथिंग? A thumbs up will be wonderful. Can you see something? आप लोग मेरी एक मिनट, give me a minute. आपको कुछ दिख रहा था मेरी स्क्रीन पे? यार आपने बताया नहीं मेरे को तो. रुक जो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको. Now you can see something on my screen. Can you see something on my screen? आप थम्स अप बना दो वहीं पे, अपने जहां पे आप बैठे हो वहीं बना दो. ऑसम. सो आप अगर ये देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. This is how I am able, if you can see my screen, this is how I am, this is my dashboard of Imbibe. We have partnered with Imbibe. आप Google पे Imbibe के बारे में पढ़ लेना. We have partnered with Imbibe. We have been, so this is how I personally mentor and track everyone's performance in Genesis. This is presently we have started for 11 12 from last 1 year. So this is, if you see, this is JE main, for example. This is all the batches in Genesis presently. So if you see, अगर मैं आपको एक sample दिखाऊं, this is JEE Main 2024. If I select this,
I can select this subject, which is either of them. So let me, for example, I choose physics, for example. And you see there are the dates also, if you see. Now I get a, this is an AI driven platform. I get the complete, I get the complete scenario, the report. For example, जो हम रेगुलर टेस्ट और असाइनमेंट्स देते हैं बच्चों को, दिस इज फॉर 11 12 आई एम सेइंग, यू वुड नॉट सी फॉर 9 10 बिकॉज 9 10 में बच्चे के पास स्कूल का बहुत प्रेशर होता है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो 5 घंटे बच्चा अगर हमारे पास है, उसके बाद हम उसको होमवर्क और उसको कैसे हम ट्रैक करते हैं। सो इफ यू सी on the right side of my screen, there are bottom 5 topics. You can see there are top 5 topics of the topic, of the physics. The topic, if you see, I'm changing the topics in the top 5 topics. ये वो है जो बच्चों की टॉप टॉपिक्स है, मतलब अच्छे हैं। बॉटम में वो जहाँ पे हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस यू सी देयर इज अ चार्ट। ये डेट, ये मेरे पास हर 15 दिन 20 दिन जितने भी मैं फिल्टर डालूंगा ऊपर आ जाएगा। इफ यू सी बॉटम 5 टॉपिक्स, इफ यू कैन सी, और येलो से है, आई कैन सी कौन से बॉटम 5 टॉपिक्स चल रहे हैं जेनेसिस के स्टूडेंट्स के। एंड देन ऑन लेफ्ट साइड ग्रीन देयर आर टॉप 5 टॉपिक्स। देन देयर इज एवरेज टेस्ट स्कोर्स। this I can get student, this I have also have it as student by student। एक एक बच्चे का आई कैन ट्रैक। अब यू सी ऑन द टॉप राइट दिस डेट, दिस रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई, दिस इज फॉर जस्ट लास्ट 1 month। This is just for the last 1 month। So which would mean that irrespective बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, it is on my fingertips, that and on the teacher's fingertips। That's how we are able to improve कि okay, अगर maximum इस बैच की maximum 4 टॉपिक्स ये वीक चल रहे हैं, तो we'll plan up the backup classes or remedial classes based upon that topics। We'll take care of the school attendance, we'll take care of everything। It's just that but routine self study पे we cannot compromise। यहाँ तक you have doubts, like there are some charts में, okay, any doubt till this point of time? I'm just going through this with the chat box। Recording will be provided। So dummy school का मैंने आपको आंसर बता दिया। We'll take care of dummy school if required, if you want it from our side। दिल्ली में डमी स्कूल जा सकते हो आप, अगर आपका बेसिकली आपका बैकग्राउंड दिल्ली से है। अगर if you want your kids to probably settle down in Delhi after 12, then you can think about Delhi schools, not an issue। अगेन दिल्ली में डमी स्कूल्स भी मिल जाते हैं। आई थिंक एनी डाउट्स, any other doubts we have? Awesome। I think we have invested a lot of time, so let me just give you a quick recap। We have multiple types of schools। So school can be government, school can be private, school can be dummy, school can be non-dummy। The choice of school depends upon the target my child is going to do appear for। मेरे मतलब it's like 2026 में मैं क्या expect कर रहा हूँ, उसका क्या target है, based upon that I'll choose the school। It could be private, it could be dummy। But अगर बच्चे का टारगेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जैसे कि मैंने बताया, तो हमारा मोर ऑफ फोकस शुड बी ऑन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए हमें ऐसा प्रोग्राम चूज करना है जहाँ पे उसको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले, ट्रैवलिंग टाइम फालतू का वेस्ट ना हो। दैट्स व्हाई आई गिव यू एन ऑप्शन। हम एक दिन स्कूल भेजेंगे बच्चों को, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। उसमें क्या होगा, एक दिन जा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, स्कूल के एग्जाम्स भी होंगे उसमें, ताकि हमें स्कूल के मार्क्स भी पता लगते रहे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जो भी जेनेसिस की ब्रांच आपके नियरेस्ट है, तो ट्रैवलिंग टाइम इज लीस्ट। सो लॉट ऑफ टाइम कैन बी इन्वेस्टेड ऑन सेल्फ स्टडी, नॉट स्टूपिड ट्रैवलिंग। अगेन बच्चा राइट टाइम पे घर आएगा, राइट टाइम उसको मेजोरिटी टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा, तो अगेन अ विन विन सिचुएशन। स्ट्रीम कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, स्ट्रीम अच्छी बुरी नहीं होती। हमारा डिसीजन, करियर ऑप्शंस अच्छी बुरी, हमने क्या करना है, इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की फॉर अ चेंज, उसको एग्जाम का प्रेशर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स को नेचुरली पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है, कौन से सब्जेक्ट्स को नेचुरली करने अच्छे लगते हैं। आई ऑलवेज से दैट अगर कन्फ्यूजन है, अगर जैसे 15 16 साल का 16 साल के बच्चे को शायद इतनी क्लैरिटी नहीं होती, बहुत कम बच्चे तो इनको लेजर लाइक फोकस होता है कि मुझे यही बनना है,
मैं यही बनना चाहता हूँ, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। तो आई ऑलवेज से, अगर आपको वो स्ट्रीम चूज करो जिस जो आपको मैक्सिमम ऑप्शंस देता है आगे, सो दैट व्हेन यू हैव फिगर्ड आउट योर पाथ कि मैंने ये करना है, तो उस टाइम पे आप इसलिए स्टक न हो जाओ कि आप उसमें जा ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेंड टू गो विद स्ट्रीम विद द मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस, अगर क्लैरिटी नहीं है। बट अगर मान लो किसी को क्लैरिटी कि मुझे सीए ही बनना है, मुझे फाइनेंस में ही करियर बनाना है, ऑब्वियसली इट्स मोर सुटेबल टू टेक टू गो फॉर कॉमर्स। बट आई ऑल्सो क्लियर फ्यू ऑफ द वेरी वेरी स्टूपिड मिथ्स। जैसे एनडीए के लिए, आपको अगर एनडीए लेना है, एनडीए का टारगेट है, तो ऑलवेज प्रेफर नॉन मेडिकल, बिकॉज आपके लिए तीनों तीनों डिफेंस सर्विसेज खुल जाएंगी। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, तो यूपीएससी का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पूरा डिटेल में वो चीज़ समझाई थी। और यू कैन गूगल द थिंग्स विच आई हैव टू वेरीफाई, यू कैन गूगल थिंग्स। ऑल्सो एमबीए के लिए जो कैट का एग्जाम है, उसका भी कॉमर्स की स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑल्सो गिव द साइंटिफिक रीजंस वाई, बिकॉज जो बच्चा साइंस के बैकग्राउंड से निकला होता है, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा 11 12 में मेहनत करता है। वो जो मेहनत है वो उसको बाद में भी बेनिफिट देती है, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में, जो पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है। लास्टली आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू द प्लान विच वी हैव इट फॉर यू। एंड बट वी गेट ओनली फ्यू सीट्स फ्रॉम ईच स्कूल, 30 seats per school we get it as non-attending. So we'll tell you when the action needs to be taken by you to book your seat. यहाँ तक आप, अब now I'm closing the session. If you have any doubt, final opportunity, you can send it on the chat. I think we have spent more than, yes, it has been more than 1 hour. uh, which school is the best, which school is the by the मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल बेस्ट डिपेंड करता है बच्चे का टारगेट क्या है। अगर बच्चे का टारगेट एंट्रेंस एग्जाम है, तो यू कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल, बट वहाँ पे यू हैव टू बी श्योर। हम पैसा डेफिनेटली बचा सकते हैं गवर्नमेंट में, बट यू हैव टू बी श्योर कि स्कूल जाने का इशू ना आए, अगर टारगेट नीट है या जेई है। और अगर टारगेट है कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, देन आई वुड एडवाइज यू कि बच्चा रेगुलर स्कूल जाए तो चलेगा। तो उसमें क्योंकि इतनी सेल्फ स्टडी नहीं करनी, 2 ढाई घंटे की सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा। एनीथिंग एल्स? चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू कॉलेज वाया कोटा चंडीगढ़? मैम अगेन दिस डिपेंड्स प्योरली ऑन द एफर्ट। दिल्ली में अगर कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो बच्चा भी तबाह के है। सो अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, तो मैम मतलब ठीक है, अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो ऑब्वियसली आईआईटीज को भी हम टारगेट करेंगे, एनआईटीज को भी टारगेट करेंगे। आईआईटीज में अगेन देयर इज नो कोटा। IITs do not have any state or UT quota, ये सिर्फ रीजनल कॉलेजेस में कोटाज होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द IITs, एम्स, इनमें कोई कोटा एप्लीकेबल नहीं है, इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एनी अदर डाउट? इफ यू एंड द पेरेंट्स who would have any confusions, you can we can meet। और अगर हमें लगेगा मीटिंग इज नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली वी कैन हैव वन ऑन वन ऑल्सो इंटरेक्शन ऑन द जूम। उसके लिए आप जो जेनेसिस की हेल्पलाइन है, आई सेंड यू द नंबर, वैसे आप सबके पास सेव्ड होगा। You can call them and you can tell them that we want to meet Sahil sir in the next few days. ये नंबर आपके पास, आई थिंक सबके पास सेव्ड होगा। सो आई बी ट्रैवलिंग टू ऑल द 3 ब्रांचेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो जो भी जिस ब्रांच में भी हो, तो आप अपना नाम, मतलब यू कैन आस्क की विल फिक्स अप अ मीटिंग, सो व्हेनेवर आई कम नेक्स्ट, I'll meet you surely, touch wood। ठीक है? Again, let's together make a bright future for our kids. Let's win in 2026, and obviously boards के लिए भी हम लगे हुए हैं, and we are working on it. Thank you so much. Bye, take care, have a good day. You'll surely get the video today.